and then we complete with the chapter. Okay, so CSS is used to describe how a particular HTML element should be appear on the web page. Okay, so three types of CSS are there: inline, internal, and external CSS. So first we go through the quick revision. External, what is external CSS? Internal, inline CSS. So external CSS, when an external with an external style sheet, you can change the look of the entire website by changing the just one file. So with the help of external CSS, you can change the look of entire website by changing just one file. So what is the idea behind this external CSS file is how the HTML tag should appear on the web page, that you can define in external file called as CSS file. You are supposed to write the properties, CSS properties for HTML tags in some other file. That file where to save .css extension. You can define the properties for the different tags in that CSS file. So how the heading should, how H1 heading should be appear on the web page, how the paragraph should appear on the web page, how the list should be appear on the web page. Like for each and every tag, you can define some CSS properties. Store those CSS properties in some external file. Once you create external file, later you can link your HTML program. Later you can create web page by writing HTML program. Okay, in that HTML program, you are going to use those heading tag or paragraph tag or list tag. Okay, but if you define the properties for those tag in CSS file, you can link your HTML program with that CSS file. So what is the property you define in that CSS file that will be applicable to that HTML program? Okay, so that's why it is possible to change the look of entire website by changing just one file. CSS फाइल में चेंज किया तो वो CSS फाइल जिस HTML प्रोग्राम के साथ लिंक किया है वो सारे वेब पेजेस अपडेट हो जाएंगे. अगर आपने CSS फाइल में अपडेट किया तो अब कुछ मॉडिफिकेशन किया तो ठीक है सारे HTML पेज ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगे. सो सेपरेट वेब पेज को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं. ठीक है, सेपरेट वेब पेज HTML प्रोग्राम में आपने टैग्स तो यूज किए हैं सेपरेट HTML प्रोग्राम में, लेकिन हर एक सेपरेट HTML प्रोग्राम आपने क्या किया है CSS फाइल के साथ लिंक किया है और CSS फाइल में डिफाइन किया है हर एक टैग्स के प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, एक्स्ट्रा इफेक्ट जो भी आपको अप्लाई करना है वो आपने CSS फाइल में डिफाइन किया. ठीक है, सो बाय चेंजिंग दैट CSS फाइल यू कैन चेंज द लुक ऑफ द एंटायर वेबसाइट. देयर इज नो नीड टू change the code of each and every HTML program. It is the good, one of the best benefit of using external CSS. Okay, so if you want to use external CSS, you are supposed to type two programs. One CSS file, you are supposed to create two files. First is your CSS file and second is your actual HTML program. Okay, so actually this CSS file you can link with any HTML program, not with a single HTML program. You can link once you create a CSS file, you can link that CSS file with any HTML program. Okay, so if you define, so here in this example the properties of body tags are defined and H1 tag is defined. Okay, so body के लिए क्या, body tag के लिए क्या attribute किया है, background color light, और heading H1 tag के लिए क्या property डिफाइन किया है, color navy और margin left 20 px. ऐसे दो property suppose डिफाइन किया है. तो ये CSS फाइल अगर आपने HTML प्रोग्राम के साथ लिंक किया तो और इस प्रोग्राम में अगर आपने H1 और बॉडी टैग अगर यूज किया है तो दिस प्रॉपर्टी विल गेट एप्लीकेबल टू दोस बॉडी एंड H1 टैग. सो ऑटोमेटिकली अगर मैंने इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट किया तो बॉडी टैग में मैंने तो बीजी कलर अप्लाई नहीं किया है, फिर भी उस वेब पेज के लिए बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू रहेगा क्योंकि हमने क्या किया, बॉडी टैग का प्रॉपर्टी सेट किया है बॉडी बैकग्राउंड कलर लाइट, और ये जो प्रोग्राम है वो उस फाइल के साथ लिंक किया है. तो यहाँ पर इस वेब पेज का जो भी बॉडी पार्ट होगा वो लाइट, उसका बैकग्राउंड पाउडर ब्लू कलर का रहेगा. ठीक है, और उसी CSS फाइल में हमने H1 टैग के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन किया है कलर नेवी, टेक्स्ट कलर नेवी. ठीक है, सो ये जो हेडिंग है दिस इज हेडिंग, ये हेडिंग इस वेब पेज के ऊपर अपीयर होगा लेकिन नेवी कलर में अप्लाई होगा. देखो अभी यहाँ पर H1 टैग में हमने कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है, फिर भी ये जो हेडिंग है दिस इज हेडिंग, इट विल अपीयर इन नेवी कलर. Why this happen? Because this HTML program is linked with
CSS फाइल और उस CSS फाइल में प्रॉपर्टी डिफाइन की है, ठीक है। सो नॉट ओनली दिस HTML प्रोग्राम, अगर मैंने कौन से भी HTML प्रोग्राम के साथ अगर ये CSS फाइल को लिंक किया तो उस HTML प्रोग्राम का बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली नेवी कलर में होगा और उस प्रोग्राम में अगर आपने H1 टैग यूज किया है तो उसका कलर नेवी होगा, सॉरी लाइट ब्लू कलर यूज किया है, लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड, ठीक है। तो फॉर एक्सटर्नल CSS you are supposed to create CSS file separately. How to create that CSS file? Simply write the name of the tag and define the properties for that tag in opening and closing curly bracket, ठीक है। And how to write property? A single CSS property in the bracket, property name colon the allowed value for that property, ठीक है। So for a single tag, several properties also you can depend how you want to how you want that particular tag should appear on the web page, okay. So CSS there are so many CSS properties are available. You are supposed to remember the name of the property along with the possible value for that property. Okay, so create the CSS file separately, then write the HTML program and link. You can link that HTML program with the CSS file. So this is the way how you can create external CSS. External CSS का कोड आपको कहाँ पे लिखना है? हेड सेक्शन, ठीक है। हेड सेक्शन में आपको एक टैग यूज करना होता है, लिंक टैग. लिंक relation is equal to rel is equal to style sheet. First you are supposed to specify, you supposed to use the attribute rel and compulsory specify value for the attribute style sheet, ठीक है। लिंक rel is equal to style sheet and h reference, आपको रेफरेंस देना कि कौन सा CSS फाइल के साथ आपको लिंक करना है प्रोग्राम. सो जस्ट सपोज ये प्रोग्राम जो CSS को आपने mystyle.css सेव किया है तो वो फाइल नेम आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. href is equal to href is the name of the attribute equal to the name of the CSS file, ठीक है. मेक श्योर दैट कि आपका ये HTML प्रोग्राम और CSS फाइल एक ही फोल्डर में होनी चाहिए, ठीक है. इफ योर HTML प्रोग्राम एंड CSS फाइल आर different folder, then you are supposed to specify the full path of that CSS file here after href, ठीक है. पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है. So this is the way how you can create the external CSS. एक बार आपने HTML का प्रोग्राम लिंक किया CSS फाइल के साथ, देन उस HTML प्रोग्राम में आप डिफरेंट HTML टैग को यूज कर सकते हो. तो जो भी टैग आप यहाँ पे यूज करोगे वो नॉर्मल डिफॉल्ट फॉन्ट, डिफॉल्ट साइज में, डिफॉल्ट कलर में अपीयर नहीं होगे वेब पेज के ऊपर. दैट डिपेंड्स ऑन योर CSS फाइल की CSS फाइल में आपने उस टैग के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी डिफाइन, अकॉर्डिंग टू दैट दोस टैग्स विल अपीयर ऑन द वेब पेज, ठीक है. सो एज्यूम करो कि ये जो CSS फाइल है हमने 10 वेब पेज के साथ लिंक किया है, ठीक है. तो सारे 10 वेब पेज पे सारे एक ही स्टाइल में हेडिंग डिस्प्ले होगा, ठीक है. तो अगर आपको वेबसाइट का लुक चेंज करना है, सपोज वन वेबसाइट इज मेड अप ऑफ 10 वेब पेजेस और 10 वेब पेज को आपने लिंक किया है CSS फाइल के साथ, सो सेम हेडिंग विल अपीयर, सेम स्टाइल का हेडिंग हर एक 10 वेब पेज पे अपीयर होगा. अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो हर एक प्रोग्राम में चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं, सिर्फ आपको चेंज कहाँ पे करना पड़ेगा? CSS फाइल में चेंज करना पड़ेगा. अकॉर्डिंगली all those 10 pages will get updated automatically because all those 10 pages are already linked with the CSS file. तो CSS फाइल में आपने अपडेट किया तो बाय डिफॉल्ट आपका वेबसाइट पूरा एंटायर चेंज होने वाला है. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज गिवन. By using external style sheet you can change the look of entire website by changing just one file, okay. Then internal CSS क्या होता है कि for internal CSS the CSS property you are supposed to write in the program, in the same program, ठीक है, not in external file. And where to write the internal CSS? You can write internal CSS in the heading section of the HTML program. Head section में style tag के अंदर आपको properties लिखना है, ठीक है. In each and every HTML program is divided into two sections, head section and body section. So head section के अंदर आपको style tag यूज करके, style tag पेयर टैग होता है, style tag के अंदर ही आप क्या कर सकते हो? प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो अलग अलग डिफरेंट टैग्स के, ठीक है. सो यहाँ पर इस प्रोग्राम में दिस एग्जांपल ऑफ इंटरनल CSS और इस प्रोग्राम में मैंने बॉडी टैग के लिए और H1 टैग के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन किया है. तो ये कौन सा टाइप हो गया है? इंटरनल CSS, इंटरनल, ठीक है. सो इसका मीनिंग क्या है कि इसी प्रोग्राम में बॉडी टैग के अंदर में अगर मैंने बॉडी टैग और H1 टैग यूज किया
तो उस बॉडी और H1 टैग को ये इफेक्ट अप्लाई होगा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो चाहे मैं कितनी बार भी यूज करूँ H1 टैग, सपोज इसी प्रोग्राम में मैंने बॉडी सेक्शन में 10 बार अगर H1 टैग यूज किया है, तो फॉर दोस ऑल H1 टैग दिस इफेक्ट विल गेट अप्लाई। कलर मरून कलर में डिस्प्ले होगा हेडिंग, और उसका मार्जिन लेफ्ट साइड पर 40 प्लेस तक रहेगा। ठीक है, so each and every time when I add H1 tag, this property will get applicable to those H1 tag. So this is an example of the internal CSS. So देखो यहाँ पर ये प्रोग्राम है, बॉडी सेक्शन में क्या है H1, दिस इज हेडिंग, तो यहाँ पर दिस इज हेडिंग आ रहा है। हेडिंग कौन से कलर में आ रहा है? क्या हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन किया है उसका कलर? नहीं किया है। तो हमने कलर कहाँ पे डिफाइन किया है? CSS में। H1 टैग का प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किया कलर मरून। अगर यहाँ पे सर से मैंने यहाँ पर रेड लिखा सर प्रोग्राम में, तो रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, और चाहे मैं अभी उसके बाद कितने भी हेडिंग ऐड करूं, H1 दिस इज सेकंड हेडिंग स्लैश H1 ऐड हो जाएगा रेड कलर। रन करने के बाद दिस इज सेकंड हेडिंग। So whenever I use H1 tag, this property will get applied. One due to this margin left 40 px, इससे देखो ये मार्जिन लीव हो गया 40 px का। ठीक है, अगर हमने निकाल दिया प्रॉपर्टी तो बाय डिफॉल्ट इस साइड से डिस्प्ले होगा। तो CSS में से प्रॉपर्टी निकाल दिया, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड से अलाइन होकर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन का वैल्यू होता है सेंटर और लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हेडिंग के सेंटर पे डिस्प्ले होगा, ये पेज के सेंटर में डिस्प्ले होगा। तो ये टेक्स्ट हाइफन अलाइन हो गया, सेम प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी का नाम और सेंटर हो गया उस प्रॉपर्टी का वैल्यू। राइट अलाइन करना है तो राइट भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो, राइट साइड भी हेडिंग चला जाएगा, इट्स राइट साइड ऑफ द वेब पेज। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का यूज किया है कि आप उसी प्रोग्राम में आपको हर एक, देखो अगर इंटरनल CSS नहीं होता, ये अगर एज्यूम करो कि इंटरनल CSS नहीं है और मुझे कुछ इस तरह से हेडिंग डिस्प्ले करना है रेड कलर में और राइट अलाइन, तो आपको क्या करना होता है, हर एक टैग को या फिर फॉन्ट टैग में आपको कलर सेट करना होता है। ठीक है, वापस वो कोड वापस यहाँ पे लिखना होता है, वापस दोनों H1 टैग के लिए। एज्यूम करो मुझे 10 हेडिंग डिस्प्ले करना है इस स्टाइल में, तो वो मुझे बार बार लिखना पड़ता है यहाँ पे, हर एक टैग हर एक H1 टैग के लिए वो प्रॉपर्टी अप्लाई करना होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे इंटरनल CSS में वो जरूरत है क्या नहीं, आपको प्रॉपर्टी एक ही बार डिफाइन करना है, चाहे उसके बाद आप कितनी बार जो टैग यूज करो सबको अप्लाई हो जाएगा। एंड थर्ड टाइप होता है CSS का इनलाइन CSS, वेयर दैट CSS इज लिमिटेड टू अ सिंगल टैग। अगर मुझे सिंगल हेडिंग को ही अप्लाई करना है CSS प्रॉपर्टी, दूसरे H1 टैग को अप्लाई नहीं करना है, तो आप इनलाइन CSS का यूज कर सकते हैं। उसी H1 उसी टैग के बिगिनिंग टैग में आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके CSS प्रॉपर्टी लिखना होता है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट इनलाइन CSS। देखो अगर मुझे ये अगर प्रोग्राम ट्राई किया, ठीक है, सो दिस इज हेडिंग आ रहा है यहाँ पे, लेकिन कौन से कलर में, कलर ब्लू कलर में आ रहा है। उसके बाद मैंने अगर H1 टैग यूज किया तो नॉर्मल टेक्स्ट कलर में दिखेगा, दिस इज सेकंड हेडिंग स्लैश H1। रन किया प्रोग्राम तो देखो ये दिस इज सेकंड हेडिंग, नॉर्मल फॉन्ट, नॉर्मल डिफॉल्ट फॉन्ट, डिफॉल्ट कलर में आ रहा है। हमने यहाँ पर देखो इनलाइन CSS का मीनिंग क्या है कि जिस टैग पे आपने CSS प्रॉपर्टी डिफाइन किया है उसी को अप्लाई होगी, बाकी दूसरे टैग को अप्लाई नहीं होगा। तो इनलाइन CSS कोड को ऐसे स्पेसिफाई करते हैं, स्टाइल इक्वल टू उसी टैग के बिगिनिंग टैग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके आपको प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना है। सो स्टाइल इक्वल टू डबल कोट के अंदर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करो सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। तो एक प्रॉपर्टी को कैसे लिखना है, प्रॉपर्टी नेम कोलन वैल्यू, सो कलर कोलन ब्लू सेमीकोलन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, like I can specify n number of properties here separated by semicolon. Those n number of effects will be applicable to the single H1 tag, and this is the example of the inline CSS. ठीक है, so here we complete with the topic internal CSS. Sorry, CSS. Now we'll solve the assignment based on CSS. So बहुत सारे असाइनमेंट यहाँ पे दिए, वो आपको सॉल्व करना है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सेकंड क्वेश्चन।
ठीक है, लिस्ट तैयार करना है लिस्ट, लेकिन while creating this list you are supposed to use external CSS to format the list. अभी सबको पता है कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है, लेकिन आपको इस लिस्ट को फॉर्मेट करना है by using external CSS. कैसे फॉर्मेट करना है? राइट HTML कोड with generate the following output and display each element of list in different size, color and font. ठीक है, तो एक्सटर्नल सीएस का यूज करना है मींस आपको क्या करना है, लिस्ट के लिए हर एक टैग के लिए आपको अलग सीएसएस फाइल की प्रॉपर्टी उसका डिफाइन करना है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू देम यू कैन, सो फर्स्ट विल क्रिएट द लिस्ट। लिस्ट को अभी फॉर्मेट नहीं करके मैं आपको पहले लिस्ट क्रिएट करके दिखा, तो बाद में हम एक्सटर्नल सीएसएस क्रिएट करके उसको फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट विल राइट द कोड टू क्रिएट दिस लिस्ट। नोटपैड में प्रोग्राम आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोग्राम। So HTML program begins with HTML tag end with /HTML, ठीक है। फिलहाल हम ये सब सिर्फ क्या करेंगे कि we'll try to display this list as it is, then we'll try to format, ठीक है। So body section में हमको लिस्ट डिस्प्ले करना है, so first we create the body section, ठीक है, ओके। सो लिस्ट कौन सा है, देखो नेक्स्ट लिस्ट का एग्जांपल है, आउटर मोस्ट लिस्ट में पहला आइटम है। आउटर मोस्ट लिस्ट पहले देखो आउटर मोस्ट लिस्ट कौन से टाइप का है, तो अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि बुलेट पॉइंट एसोसिएटेड बुलेट पॉइंट है, तो अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट यू कैन क्रिएट बाय यूएल। इसका टाइप क्या है, टाइप इज इक्वल टू डिस्क। ये जो टाइप है ये डिस्क है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, टाइप डिस्क सर्कल स्क्वायर। तो हमारा जो आउटर मोस्ट लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं पहला आइटम, उसमें कौन सा है, कौन सा टाइप है इस लिस्ट का, आउटर मोस्ट लिस्ट का टाइप इज इक्वल टू डिस्क। तो लिस्ट है तो कहीं ना कहीं उसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस लिस्ट में मैंने पहला आइटम ऐड करने जा रहा हूं। पहला आइटम कैसे ऐड करेंगे, एलाइ टैग से। पहला आइटम क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, लिस्ट आइटम। हाँ नहीं, यहाँ पे क्लोज नहीं होगा लिस्ट आइटम, ये पहला लिस्ट आइटम यहाँ पे हमने ऐड किया, ठीक है। अभी क्या इस आइटम का दूसरा लिस्ट आइटम है क्या, नहीं, क्योंकि इस लिस्ट आइटम के बाद दूसरा लिस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ये लिस्ट आइटम को अभी क्लोज नहीं करना है। दूसरा लिस्ट स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा लिस्ट स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, और दूसरा लिस्ट कौन सा है, वो भी अनऑर्डर लिस्ट है, तो यूएल टाइप। इसका टाइप क्या है, सर्कल, टाइप इज इक्वल टू सर्कल। अब इस लिस्ट में कितने आइटम है, इस न्यू लिस्ट में दो आइटम है, फॉर एंड स्कोर। तो फर्स्ट आइटम यू कैन ऐड बाय यूजिंग एलाइ टैग, तो स्लैश एलआई, ये आइटम क्लोज करना पड़ेगा, तभी जाके आप दूसरा आइटम ऐड कर सकते हो। दूसरा आइटम है फॉर स्कोर, SPOR स्लैश एलआई, ठीक है। तो स्कोर ऐड करने के बाद हमारा ये वाला आइटम क्लोज हो रहा है, क्योंकि नया आइटम आउटर मोस्ट लिस्ट में ऐड करना है, तो पहला वाला आइटम क्लोज करना पड़ेगा। तो पहला वाला आइटम कौन सा था, हमारा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि यहाँ पर हमको क्लोज करना है इस लिस्ट को एंड होने के बाद। तो पहले उस इनर लिस्ट को हम क्लोज कर देंगे, जो हमने न्यू टैग ओपन किया था क्लोज, उसके बाद हमारा लिस्ट आइटम क्लोज होगा, ठीक है। सो नाउ विल ऐड द सेकंड आइटम। सेकंड आइटम जब ऐड करेंगे तो आउटर मोस्ट लिस्ट में ऐड होगा, क्योंकि हमने इनर लिस्ट हमने ऑलरेडी क्लोज किया है, तो इनर लिस्ट में तो नहीं ऐड होने वाला नया। ये वाला इनर लिस्ट है, ये आउटर लिस्ट है। इनर लिस्ट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, और हमें यहाँ नया आइटम ऐड कर रहे हैं बिफोर क्लोजिंग द आउटर मोस्ट लिस्ट, सो दैट्स व्हाई दिस लिस्ट आइटम विल बी ऑटोमेटिकली एडेड आउटर मोस्ट लिस्ट। तो आउटर मोस्ट आइटम कौन सा है, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। लिस्ट आइटम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, नहीं तो यहाँ पे क्लोज नहीं करना, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर और एक लिस्ट उन्होंने नेस्टेड किया है, तो यहाँ पे और एक लिस्ट यूज करना पड़ेगा, यूएल। उसके लिए टाइप कौन सा है, स्क्वायर, सो टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर आएगा यहाँ पर। नया लिस्ट हम ऐड करने जा रहे हैं, उसका टाइप क्या है, टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। ये लिस्ट कहीं ना कहीं तो क्लोज करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे ही क्लोज करके रखेंगे। अभी इस लिस्ट में कितने आइटम है, इस लिस्ट में दो आइटम है, लिली एंड रोज। तो लिली पहला आइटम ऐड करेंगे एलआई टैग से, LILLY स्लैश एलआई, ये आइटम यहाँ पे क्लोज है। उसके बाद कौन सा है, रोज। तो सेकंड आइटम यू कैन ऐड बाय सेकंड एलआई टैग,
रोज, वो भी यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रोज ऐड करने के बाद ये आइटम यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा है। रोज के बाद और एक लिस्ट इसके अंदर एंक्लोज किया है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो रोज के अंदर एक नया लिस्ट है, तो वो क्रिएट करेंगे ओएल टैग से, क्योंकि जो अंदर जो लिस्ट है इनर मोड वो ऑर्डर लिस्ट है। सो ओएल टैग को पहले क्लोज करके रखेंगे, और उस ओएल टैग में कितने आइटम्स है, 2 आइटम है। तो पहला आइटम हम ऐड करेंगे रेड रोज स्लैश एल आई, और उसके बाद सेकंड आइटम है पिंक रोज। सेकंड आइटम ऐड कैन ऐड बाय यूजिंग न्यू आइटम पिंक रोज स्लैश एल आई। ठीक है, तो पिंक रोज के बाद हमारा ये इनर मोड से ओएल लिस्ट ऐड हो रहा है, हो गया। उसके बाद हमारा रोज वाला आइटम जो पेंडिंग था क्लोज करना, वो यहाँ पे क्लोज करना स्लैश एल आई। कौन सा एल आई टैग क्लोज किया है पे? रोज वाला, क्योंकि रोज के अंदर ये लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट। तो रोज का जो एल आई आइटम है यहाँ पे ओपन किया, तो उसके बाद क्लोज किया। ठीक है, तो रोज ये सेकंड आइटम था ये इनर लिस्ट का, तो उसके बाद हमको ये वाला लिस्ट क्लोज करना पड़ेगा, स्क्वायर वाला, तो जो कि हमने यहाँ पे किया है। और उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स वाला लिस्ट क्लोज होना चाहिए, जो कि अपने क्लोज हुआ है। उसके बाद एंड ऑफ द बॉडी सेक्शन, उसके बाद एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो दिस बिकम द प्रोग्राम फॉर फुल स्पेस स्टेप ऑफ लिस्ट। ठीक है, सेव दिस प्रोग्राम, विल सेव ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, नाम देंगे प्रोग्राम को, एक फोल्डर में सेव करेंगे, सीएसएस फोल्डर में, डेस्कटॉप पे सीएसएस फोल्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम में सेव करने जा रहा हूँ लिस्ट डॉट एचटीएमएल, लिस्ट डॉट एचटीएमएल सेव हो गया प्रोग्राम। ठीक है, विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट वन। डेस्कटॉप पे सीएसएस फोल्डर, उसमें लिस्ट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, सो देखो जैसे लिस्ट दिया था क्वेश्चन में, उसी तरह के लिस्ट डिस्प्ले हो चुका है। फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग के अंदर फर्न्स फॉर, फ्लावरिंग के अंदर लिली रोज, और रोज के अंदर वापस रेड और पिंक। उसी तरह से यहाँ पे देखो 2 आइटम है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर 2 एग्जांपल है, फर्न्स फॉर। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर 2 एग्जांपल है, लिली और रोज के अंदर और 2 एग्जांपल है, रेड रोज एंड पिंक रोज। तो जैसे हमको चाहिए था उसी तरह से लिस्ट डिस्प्ले। अभी हमको क्या करना है, इस लिस्ट को फॉर्मेट करना है। कैसे फॉर्मेट करना है कि हमको हर एक लिस्ट आइटम जो है अलग अलग कलर में, अलग साइज में डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस वाला एल टैग के लिए हमको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, इस वाले एल टैग को भी हमको प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, इस वाले एल टैग। तो टैग हमारा एक ही रहेगा, लेकिन हमको हर एक एल टैग को अलग अलग प्रॉपर्टी देना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अभी सिंपली एक ही एल टैग के लेकर हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया सीएसएस फाइल में, तो सारे लिस्ट आइटम को एक ही कलर और एक ही फॉर्मेट अप्लाई होगा। हमको क्या करना है, हर एक लिस्ट आइटम को अलग अलग कलर, अलग अलग साइज में डिफाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हर एक एल टैग को एक आईडी देंगे, आईडी इक्वल टू, इसको हम देंगे आईडी ए। ठीक है, इस वाले ठीक है, तो आउटर मोस्ट लिस्ट, तो आउटर मोस्ट लिस्ट के दो प्लांट है, तो ये दो ऑप्शन सेम कलर में आना चाहिए, तो दोनों को हम क्या देंगे यहाँ पर, आईडी सेम आईडी, आईडी इज इक्वल टू, ये 2 आइटम मुझे सेम कलर में चाहिए, सेम स्टाइल में चाहिए, सपोज तो उसको भी मैं आईडी देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू से बी, इसको भी देता हूँ आईडी इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बाद में आईडी वाइज प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसके अंदर लिली और उसको मुझे सेम स्टाइल देना है, तो यहाँ पर मैं आईडी बनाऊंगा, आईडी इज इक्वल टू सी, इसको भी सेम आईडी, आईडी इज इक्वल टू सी, और इनको सेम कलर में सेम स्टाइल डिस्प्ले करना है, सपोज तो आईडी इज इक्वल टू बी, यहाँ पर भी आईडी इज इक्वल टू बी। तो मैंने देखो 4 आईडी डिफाइन किए, ए बी सी और डी। तो मुझे अभी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल में क्या करना है, सिर्फ ए बी सी डी 4 बार मुझे प्रॉपर्टी डिफाइन करना है। अगर मैंने ए के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन किया, तो जिस टैग में मैंने नाम ए दिया है उसको प्रॉपर्टी अप्लाई है। ठीक है, तो ये हो गया एचटीएमएल प्रोग्राम। नाउ विल राइट
CSS प्रोग्राम। ठीक है, CSS प्रोग्राम को क्या लिखना है, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखने होते हैं। प्रॉपर्टी कहाँ पे लिखने, ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, अभी कौन से टैग के लिए हमको प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, तो मुझे एलआई टैग के लिए प्रॉपर्टी यूज डिफाइन करना है। लेकिन उसी प्रोग्राम में एलआई टैग तो मैंने बहुत बार यूज किया, लेकिन हर एक एलआई टैग को अलग अलग स्टाइल देना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले प्रोग्राम में हर एक एलआई टैग को एक सेपरेट आईडी दिया, और आईडी वाइज मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टी। तो नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन प्रॉपर्टी फॉर आईडी ए। सो आईडी नेम यहाँ पे लिखना है सिर्फ preceded by hash, then write the properties. Okay, so background colors, red, इसका कलर के लिए एक्टिव होता है कलर, COLOR, कलर येलो। फॉन्ट साइज से 20 px। कुछ 3 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखाई, इसके लिए आईडी डिफाइन किया एक। तो मैं पहले ये फाइल CSS फाइल को सेव करता हूँ उसी फोल्डर। ठीक है, CSS फोल्डर में मैं CSS फाइल स्टोर कर रहा हूँ, लिस्ट css.css। You can give any name to the file, तो मैंने फाइल को नाम क्या दिया है, list css, और एक्सटेंशन कंपोजिट डॉट css होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई द एक्सटेंशन डॉट list css.css। सेव किया फाइल। ठीक है, अभी हमको बाद में क्या करना है कि हमारा जो प्रोग्राम है, ये वाला HTML प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के साथ हमारा CSS फाइल को लिंक करना है। ठीक है, तो हम पहले प्रोग्राम ओपन करेंगे। ठीक है, नोटपैड में ये वाला हमारा लिस्ट का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमको एक्सटर्नल CSS यूज करना है, तो एक्सटर्नल CSS को यूज करते हैं, सेव सेक्शन में आपको कोड लिखना है, हेड सेक्शन। ठीक है, इस वाले प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, वो हमने CSS फाइल क्रिएट किया है उसके साथ लिंक कर देंगे। लिंक कैसे करना है, लिंक टैग से, लिंक रेल इज इक्वल टू, यहाँ पे कंपोज लिखना होगा स्लैश एंड देन href इक्वल टू, तो कौन से फाइल के साथ लिंक करने होगा, जो हमने अभी फाइल क्रिएट किया list css.css, उस फाइल के साथ लिंक करना है टैग्स। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम अभी क्या हो गया, इस CSS फाइल के साथ लिंक हो गया। उस CSS फाइल में हमने क्या किया है, ए के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन किया है, आईडी ए के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन किया। कौन कौन से प्रॉपर्टी डिफाइन किए, बैकग्राउंड कलर रेड, कलर येलो एंड फॉन्ट साइज 20 px। ठीक है, अभी इस पूरे प्रोग्राम में जिस li टैग, जिस टैग का आईडी ए है, वो टैग उस प्रॉपर्टी में अपीयर होगा। 2-3 प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किया है। तो हमारे पूरे प्रोग्राम में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट, इस ऑप्शन के लिए जो टैग हमने यूज किया है li टैग, उसका आईडी ए है, स्मॉल ए। तो यही दो आइटम्स जो है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट, इट विल अपीयर इन रेड कलर, बैकग्राउंड कलर शायद येलो दिया हमने, और उसका साइज 20 है। इतना अगर मैंने कोड सेव किया तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। हाँ, अभी देखो इसमें क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। तो पूरे लिस्ट के लिए, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लिस्ट है, आउटर मोस्ट लिस्ट को अप्लाई हो गया बैकग्राउंड कलर पे। ठीक है, नाउ और टेक्स्ट कलर येलो और 20 साइज है, 20 साइज। नाउ विल डू द चेंज इन आवर CSS फाइल। ठीक है, CSS फाइल ओपन करेंगे हम अभी वापस, थोड़ा CSS फाइल में चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और आईडी बी के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ, आईडी बी के, तो हैश बी, उसके अंदर प्रॉपर्टी, यही 3 प्रॉपर्टीज में कॉपी पेस्ट, लेकिन थोड़ा वैल्यू चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर आएगा से, बैकग्राउंड कलर देना है से ब्लैक, और उसके ऊपर टेक्स्ट आना चाहिए व्हाइट कलर। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे 30 px साइज। आईडी बी के लिए 3 प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन किया है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक के ऊपर टेक्स्ट रहेगा व्हाइट कलर में, और टेक्स्ट का साइज रहेगा फॉन्ट साइज 30। ठीक है, CSS फाइल को किया मैंने सेव। ठीक है, अभी हमारा जो लिस्ट वाला प्रोग्राम है उसमें देखो आईडी बी के लिए कितने टैग्स है, जिसका आईडी बी है
तो पूरे प्रोग्राम में 2 ही li टैग ऐसे टैग है जिनका आईडी बी है, तो फर्न और स्पॉर, तो ये 2 आइटम जो है, लिस्ट आइटम जो है, अब बैकग्राउंड कलर ब्लैक पे व्हाइट कलर में डिस्प्ले होगा 30px। और इसको सेव किया तो सिंपली रन करना है, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा लिस्ट है उसको बैकग्राउंड कलर रेड आ गया और उसमें व्हाइट कलर में लिस्ट आइटम डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि लिली और रोज, इस ये तो सेपरेट लिस्ट है, लिली और रोज इस लिस्ट को मुझे से ग्रीन कलर बैकग्राउंड कलर देना है और ब्लू कलर, ग्रीन के ऊपर ब्लू कलर में वो टेक्स्ट आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले लिली और रोज के लिए आईडी दिया है सी, तो हम सीएसएस फाइल में आईडी सी के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। सीएसएस फाइल में मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। सीएसएस फाइल है, ये एचटीएमएल का प्रोग्राम नहीं है, तो आईडी सी के लिए मुझे प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और ग्रीन के ऊपर यहाँ पे आना चाहिए ब्लू कलर पे टेक्स्ट, साइज हम यहाँ पे कर देंगे 35। सेव किया मैंने सीएसएस फाइल, ठीक है। तो आईडी सी किसको दिया है, लिली और रोज, इस दो उस प्रोग्राम में ये तो ये पूरा प्रोग्राम हमने सीएसएस फाइल के साथ लिंक किया है और इस सीएसएस फाइल में हमने आईडी सी के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन किया। तो आईडी सी किसका किसका है, इस दोनों टैग का ही है, तो ये जो दोनों टैग है वो उस प्रॉपर्टी में एक्टिव होंगे। तो रिफ्रेश किया तो देखो याद है, आई थिंक वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया है तो सर हेड क्लोज नाही केला, हेड सेशन तो कोई कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ से कि मुझे क्या करना है कि रेड रोज और पिंक रोज ये वाला सेपरेट लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, उसको मुझे बैकग्राउंड कलर देना है से पिंक, और पिंक में पिंक के ऊपर कौन सा कलर दिखेगा, पिंक के ऊपर ब्राउन कलर, पिंक के ऊपर ब्राउन कलर, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे और एक आईडी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है प्रोग्राम के अंदर रेड रोज पिंक रोज, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट, इस लिस्ट को हमको प्रॉपर्टी देना है, अप्लाई करना। तो आईडी डी है उसके लिए, तो डी के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, सीएसएस प्रॉपर्टी डी हैश डी, कॉपी किया या फिर पेस्ट। बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे पिंक और पिंक के ऊपर टेक्स्ट कलर चाहिए ब्राउन, सेव द चेंजेस। सीएसएस फाइल में मैंने चेंज किया, क्या मैंने प्रोग्राम के अंदर चेंज कर रहा हूँ, नहीं सीएसएस फाइल में चेंज होगा, सो अकॉर्डिंगली मेरा प्रोग्राम मॉडिफाई होगा, ठीक है। और पिंक कलर आ गया बैकग्राउंड कलर इस लिस्ट आइटम को, और उसके ऊपर ब्राउन कलर में टेक्स्ट कलर। तो देखो ऐसे इस तरह से मैंने उस लिस्ट को फॉर्मेट किया है बाय यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस। अभी मुझे बाद में अगर और कितने भी आइटम ऐड करना है, सपोज मुझे और एक आइटम ऐड करना है फॉर्म्स फॉर और एक नॉन फ्लोरिंग लाइन सपोज XYZ, तो उसको सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। या फिर मुझे कोड में सिर्फ लिस्ट आइटम ऐड करना है, ठीक है, लिस्ट आइटम सिर्फ इसका कॉपी करके मुझे क्या करना है, लिस्ट आइटम ऐड करना है, उसको ऑलरेडी प्रॉपर्टी अप्लाई हो। सपोज XYZ इज वन ऑफ द नॉन फ्लोरिंग, सेव द चेंजेस, प्रोग्राम में सेव करो या फिर एग्जीक्यूट, इस न्यू आइटम को भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो। क्या मैंने इस प्रॉपर्टीज इस लिस्ट आइटम को कुछ फॉर्मेट किया है, व्हाइट कलर दिया, ब्लैक कलर नहीं, बैकग्राउंड ब्लैक कलर भी नहीं दिया, व्हाइट कलर भी नहीं दिया, फिर भी वो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी में अपीयर हो रहा है वेब पेज के ऊपर, क्योंकि हमने सीएसएस फाइल के साथ लिंक किया है। होप यू अंडरस्टूड दिस, एनी डाउट इन दिस
असाइनमेंट। तो देखो इस प्रोग्राम के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, HTML का प्रोग्राम सेपरेट लिखना है और CSS का प्रोग्राम सेपरेट लिखना है। और मैंने CSS फाइल में प्रॉपर्टी कैसे लिखी, टैग वाइज नहीं लिखी है क्योंकि एक ही टैग यूज होने वाला है एलआई टैग के लिए, लेकिन मुझे अलग अलग एलआई टैग के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया है, हर एक एलआई टैग को एक आईडी असाइन और आईडी वाइज मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन की है CSS फाइल। आईडी ए के लिए ऐसा टैग जिसका आईडी ए है उसको ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, ऐसा टैग जिसका आईडी बी है उसको ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, ऐसा टैग जिसका आईडी सी है उसको ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, लाइक ऐसे मैंने CSS फाइल में लिख के रखा है और वो CSS फाइल इस वाले HTML फाइल को लिंक किया है लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस असाइनमेंट? यस और नो? अभी इसी प्रोग्राम को अगर इंटरनल CSS करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी प्रोग्राम को आगे ये तो होगा एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS की क्या करना पड़ता है, और ये क्वेश्चन बोला कि यूज इंटरनल CSS टू फॉर्मेट दिस वेब पेज। ठीक है, यूज इंटरनल CSS टू फॉर्मेट द, तो आपने ये जो प्रॉपर्टी डिफाइन किया है सम अदर फाइल में, एक्सटर्नल फाइल, ठीक है, वो कहाँ पे लिखने होते हैं आपको, आपको लिखना पड़ता है इस प्रोग्राम में हेड सेक्शन। तो यहाँ से इंटरनल CSS के बारे में बोल रहा हूँ आपको, तो ये इंटरनल CSS एक्सटर्नल नहीं बोला है क्वेश्चन में, इंटरनल CSS बोला, तो आपको एक्सटर्नल CSS की जरूरत नहीं। तो इंटरनल CSS कहाँ पे लिखते हैं, और हेड सेक्शन में स्टाइल टैग किया स्लैश स्टाइल, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। तो वो हेड सेक्शन में स्टाइल में मैंने क्या किया है, आईडी ए के प्रॉपर्टी, आईडी बी के प्रॉपर्टी, आईडी सी के प्रॉपर्टी, आईडी सी के प्रॉपर्टी, और बाद में हमारा बॉडी सेक्शन एज इट इज। तो ये होगा इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का ड्रॉबैक क्या है कि मुझे अगर दूसरा HTML प्रोग्राम में सेम इफेक्ट देना है तो मुझे वापस लिखना पड़ेगा उस सेकंड HTML प्रोग्राम, ये इतना पर वापस लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको ये मल्टीपल वेब पेजेस के लिए सेम इफेक्ट देना है लिस्ट को, तो यूज एक्सटर्नल CSS। ठीक है, और इनलाइन CSS करना होता तो आपको ये जो प्रॉपर्टी हर एक टैग में यहाँ पे लिखना होता, इंटरनल CSS हो जाएगा। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस। सो हियर वी कंप्लीट विद द चैप्टर नंबर 4 CSS। ठीक है, तो अभी मैंने CSS के ऊपर बेस्ड जो भी असाइनमेंट है उसमें से आपको एक असाइनमेंट एक्सप्लेन करके दिया, बाकी की आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में इनलाइन CSS कोई बोला है इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनल को या फिर एक्सटर्नल CSS को, अकॉर्डिंगली यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। ठीक है, so here we complete with the chapter number 4. In next lecture we'll start with the second last chapter which is JavaScript. ठीक है, चैप्टर नंबर 5 which is JavaScript, और उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 बाकी थ्योरी चैप्टर है वो प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है, वो हम बाद में लास्ट में कवर करने वाले हैं क्योंकि हमको अभी 15 जून से पहले आपका और 20 जून तक आपको एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना है। ठीक है, 15 जून तक हमारा इंटरनल एग्जाम हो जाएगा, जो भी सिलेबस बचेगा बाद में एग्जाम के बाद एक्स्ट्रा लेक्चर लेके कंडक्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे सिलेबस। ठीक है, सो टुमारो विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5 जावास्क्रिप्ट। ठीक है, टिल देन बाय स्टूडेंट्स, लीव द मीटिंग नाउ। वन इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट लीव द मीटिंग, टुमारो देयर इज अ पेरेंट मीटिंग, पेरेंट टीचर मीटिंग। ठीक है, बैच वाइज सेपरेट लिंक आएगा ग्रुप पे पेरेंट टीचर मीटिंग का। ठीक है, 4 बैचेस हमने क्रिएट किए हैं। पहला बैच है रोल नंबर 1 to 30 का, दूसरा बैच है रोल नंबर 31 to 60 का, तीसरा बैच है 61 to 90, फोर्थ बैच है 91 to 125। हर एक बैच का पेरेंट टीचर मीटिंग सेपरेट स्टाफ कंडक्ट करने वाला है। ठीक है, सो बैच 1 के लिए रोल नंबर 1 to 30 के लिए सेपरेट लिंक आएगा, सिर्फ रोल नंबर 1 to 30 के लिए वही लिंक फॉलो करना है। ठीक है, आपको दूसरा लिंक, बाकी बैच का लिंक अटेंड नहीं करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, second separate link will be there for roll number 31 to 60 parent teacher meeting का लिंक सेपरेट होगा सेकंड बैच के लिए। तो सेकंड बैच के स्टूडेंट को वही लिंक को क्लिक करके पेरेंट टीचर मीटिंग को अटेंड करना है। ठीक है, हर एक पेरेंट टीचर मीटिंग आपको अटेंड करना है, एक ही लिंक जो आपका बैच का लिंक है वही आपको अटेंड करना है। मेक श्योर दैट कि आपके